Hello students, welcome to BDN History classes. ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଭାରତ ଇତିହାସ ବହିର ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମାଜର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ବା ଲୋକାଚାର ହେଉ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଉ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ। ସେହି ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ସମାଜ ବିଷୟରେ, ତାର ଚାଲିଚଳଣି ବିଷୟରେ, ତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁ ଧର୍ମ, କେଉଁ ସମାଜରେ କେଉଁ ଧର୍ମର କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲିକି ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ କ'ଣ? ନା ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ 4 ପ୍ରକାରର: ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ବେଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। 4ଟି ବେଦ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି, ବସତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ସଭା ସମିତି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତି, ଉପାସନା ଆଦି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦରୁ ରାଜା ସୁଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବେଦାଙ୍ଗ ବା ଉପନିଷଦରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ବୃହସୂତ୍ର, ଧର୍ମସୂତ୍ର ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ମହାକାବ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଥିଲା ମହାକାବ୍ୟ। ସେ ମହାକାବ୍ୟ 2ଟି କ'ଣ? ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସେତେବେଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ କାବ୍ୟଟି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଏହା ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ। ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଶୀଳନରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ମହାଭାରତର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା। ମହାଭାରତ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବେଦ, ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ
प्राचीन भारतर अन्यतम धर्मग्रंथ। अष्टादश पुराण यही प्राचीन भारत में रचित होता सेगुड़िक मध्य वायु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि अन्यतम। से समस्त गुप्त जुगरे संकलित होइथिला। अन्यान्य धर्मग्रंथ विषय देखिबा। पुराण को बाद दे अन्यान्य धर्मग्रंथ मध्य धर्म साहित्यर अंग रूपे विवेचित होइथे। अंग, उपांग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरंग सूत्र आदि ग्रंथ जैन धर्म और दर्शन उपरे आलोकपात करिଥାଏ। बौद्ध धर्म उपरे सविशेष सेपरि आलोचना करथे केतेगुड़िए ग्रंथ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। एही तीनोटी मिसी त्रिपिटक नाम नामित होइछि। दीपवंश एवं महावंश एवं विभिन्न जातक आदि अन्यतम। सूत्र पिटक बौद्ध धर्मर नियम और विनय पिटक बौद्ध संघर नियमावली एवं अभिधर्म पिटक बौद्ध दर्शन उपरे आलोकपात करिଥାଏ। बौद्ध धर्मर अन्य एक ग्रंथ है अंगुतर निधाय। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में गढ़ी उठी प्राचीन भारतर 16 गोटी महाजन पद संपर्क में सूचना दे थाए। आमर 1600 ख्रीष्टाब्द जो महाजन पद गढ़ी उठी से गुड़िक विषय आलोचना करिଥାଏ बौद्ध धर्मर अंगुतर निधाय। ठीक से भली भाबे शैव, शाक्त और अन्यान्य धर्म उपरे बहु प्राचीन ग्रंथ गुड़िक धारणा प्रदान करने दिगरे सक्षम होइଥାଏ। लौकिक साहित्य साधारण जनतार मनोरंजन और सामाजिक नीति नियम आदिर प्रतिफलन निमित्त लौकिक साहित्य रचित होइଥାଏ। राज्य रे सामाजिक नीति नियम रक्षणाबेक्षण पई राजा माने स्मृति शास्त्र उपरे गुरुत्वारोप करुथिले। विभिन्न स्मृति शास्त्र तथा मनुस्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि ग्रंथ मानकरे प्राचीन भारतर वर्ण व्यवस्था, संपत्तिगत नियम, स्त्री धन, विभिन्न प्रायश्चित विधान, मत, विवाह, दंड व्यवस्था आदि संपर्क में विशेष भाव में वर्णना करा जायथिला। देखो एक सबू जोड़ा सब मु बारंबार कहूँ मु जोड़ा सब अंडरलाइन कर सब गुड़ी को नोट करनियो कारण एगुड़ा सब इम्पोर्टाट अच्छी आउड़ा को बार बार पढ़ले ही एगुड़ा मन रुहे। गोटे थर पढ़ीदे मन रही कि भिडियो को बार बार देखो 2-3 बार देखीदे गोटे थर पढ़ले ठीक से मन पड़ जा। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे मौर्य युगर राज्य शासन, कर व्यवस्था, दंडनीति, वैदेशिक संपर्क एवं अर्थनीति आदि विशेष भाव में सुव्यवस्थित भाव में आलोचना करा जायथिला। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र मौर्य युग राज्य शासन, कर व्यवस्था, दंडनीति, वैदेशिक संपर्क, अर्थनीति आदि विषय रे हुए। ठीक सही परि भाव में कामंदक नीतिसार गुप्त युगीय शासन व्यवस्थार प्रवक्ता थिले। यह व्यतीत पाणिनिकर अष्टाध्यायी ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पतंजलि महाभाष्य का संस्कृत व्याकरण 2टी अमूल्य ग्रंथ थिला। लौकिक साहित्यर अन्यतम अंग थिला ऐतिहासिक ग्रंथ गुड़िक। से गुड़ी कौन कौन विशाखा दत्तर मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्यंकर कृतित्व संपर्क में वर्णना करथला। अन्य एक नाटक थिला देवी चंद्रगुप्तम 2य चंद्रगुप्त पराक्रम विषय रे कहे। बाणभट्टंकर हर्षचरित हर्षवर्धन संपर्क में वर्णना करिଥାଏ। बिल्लहणंकर विक्रमार्क
रचित पुस्तक चालुक्य नरपति विक्रमादित्य कार्यावली विषय कहुଯାଇଛି। बंगर शासन रामपाल विषय सविशेष सूचना देता है। संध्याकर नंदर रामचरित, बागपतिंकर गौड़बाह राजा जशवर्मन संपर्क वर्णना करिଥାଏ। हेमचंद्र कुमारपाल चरित एवं बल्लाळंकर भोज प्रबंध मध्य एही श्रेणी अंतर्भुक्त। मध्ययुगर से मध्ययुगर प्राक काल चांदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रास पृथ्वीराजंकर वीरत्व विषय कही थाए। लौकिक साहित्य धर्म रे क्रमिक इतिवृत्ति मध्य अन्यतम। एही दिगरे कल्लहणଙ୍କ राजतरंगिणी एक उल्लेखनीय कृति रूपे परिगणित होई थाए। एथिरे काश्मीर राजवंशावली, दरबारी षड्यंत्र और दंड व्यवस्था विषाद रूपे वर्णना कराଯାଇଛି। कल्लहणଙ୍କର राजतरंगिणी काश्मीर वर्णना एवं तार राजवंश उपरे वर्णना कराଯାଇଛି। गुजरात रसमाला और नेपाल कीर्तिकुमुदिनी मध्य संपुक्त राज्यर इतिहास लेखिबारे सहायक होइଥାଏ। कटक राजवंशावली एवं उड्रदेश राजवंशावली प्राचीन ओडिशार इतिहास रचना करिबा पई बहु उपदेय तथा तथ्य प्रदान करिଥାଏ। सेहीपरि भावे अन्य लौकिक साहित्य मध्य आर्यभट्टंकर आर्यभट्टियम गणित, आर्यभट्टंकर आर्यभट्टियम गणित एवं ज्योतिषशास्त्र एक अनवद्य ग्रंथ। बराहमिहिरंकर बृहत संहिता एही दिगरे मध्य आलोकपात करिଥାଏ। चरकଙ୍କ द्वारा रचित चरक संहिता, सुश्रुतଙ୍କ द्वारा सुश्रुत संहिता भेषज शास्त्रर दुई अनवद्य ग्रंथ। पालकप्यंकर हस्तायुर्वेद, शालिहोत्रंकर अश्वशास्त्र मध्य पशु चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य ग्रंथ रूपे परिगणित हेउछि। साहित्य कृति प्राचीन भारत में बहु विशिष्ट साहित्यिक कवि नाट्यकार सेमानंकर कालजयी कृति बल रे साहित्य को रुद्धिमंत करथिले। सेमानंक मध्यरु कालिदासंकर अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमावश्यम आदि नाटक, रघुवंश, कुमार संभव महाकाव्य, ऋतुसंहार खंडकाव्य अन्यतम अटे। कालिदास एक महान कवि थिले। तांकर अनेक लेखा गुड़िक मध्य महान अटे। तेणु एगुड़ी को भलरे मन रखियो। यही समस्त कृति गुप्त वंशर इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, समाज व्यवस्था एवं धर्म संपर्क में सविशेष तथ्य प्रदान करिଥାଏ। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्तर समय राजनैतिक व्यवस्था वर्णना करिथिबा बेले देवी चंद्रगुप्त नाटक द्वितीय चंद्रगुप्त शासक रुद्रसिंह उपरे विजय संपर्क में सूचना प्रदान करिଥାଏ। दंडिनींकर दशकुमार चरितम प्राचीन भारतर राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था संपर्क में वर्णना करिଥାଏ। विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र थिला नीति कथायुक्त नीति नियम विषय आलोचना करते। पंचतंत्र नाटक माध्यम छोट छोट नाटक माध्यम समाज रे थिबा नीति नियम गुड़ी को से दर्शाई थिले। शूद्रकंकर मुच्छकटिकम
थिला एक ऐतिहासिक नाटक। एहिभଳି भाବରେ सुबंधु, आर्यभट्ट, अमर सिंह, ब्रह्मगुप्त, बासुळ, राजशेखर, भारवी आदि बहु मनीषीगण सेमानଙ୍କର रचना ପାଇଁ प्राचीन भारत इतिहास रे प्रसिद्धि अर्जन करथिले। दक्षिण भारतर चोल, पांड्य, चेर राजांग उपरे संगम साहित्य आलोकपात करे। तेणु आम दक्षिण रे जो सब राजवंश थिले चोल, चेर, पांड्य से राजा मानकर विषय रे संगम साहित्य अध्ययन रू आम जानी परिबा। मणिमेखलाई, चिंतामणि, कुंडलीकेशी, भूतमपुरम, मपुरम, कुरुंग लिमसी आदि पुस्तक ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 500 दीर्घ 1000 वर्षर राजनैतिक, समाज, अर्थनैतिक और धार्मिक इतिहास उपरे आलोचना करिथाय। सेहिपरि आरब मानकर सिंधु आक्रमण रे अष्टम शताब्दी रे बहु आरब लेखक भारत संबंध रे सविशेष तथ्य देइछन्ति। अबू जुइदुल हासन को पुस्तक सलसिलातुत कावारिक से समय रे राज्याभिषेक सहित जड़ित बहु कथा संपर्क रे सूचना प्रदान करिथाय। इबन खुरबादी बहु चर्चित पुस्तक किताब उल मामालिक भारतीय समाजर विभिन्न जाति तथा विभिन्न जाति विषय रे आलोचना करिथाय। सेही परि भाबरे रशीदुद्दीन को जमालुत तावारिख, इबन हौकल को अस्काली बिलाद, आल्बेरुनींकर ताहिकी हिंद भारतर तत्कालीन सामाजिक, अर्थनैतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर आलोचना करछि। ठीक सही परि भाबरे हसन निजामी कर ताज उल मासिरी, निजाम उस सिराज कर तबाकेती नासिरी, आमिर खुसरूंकर खजाइन उल फुत एवं तुगलक नामा बरुणींकर तारिखी फिरोजशाही आदि पुस्तक मान दिल्लीर खिलजी, तुगलक आदि वंशर शासन उपरे आलोकपात करिथाय। ठीक सही परि भाबरे बाबरंकर आत्मचरित बाबरनामा, गुलबदन बेगम को हुमायूननामा और अब्बास खां सरवाइन को तारीख ई शेरशाही, अब्दुल्लांकर तारीख ई दाऊदी, अबुल फजलंकर अकबरनामा, जहांगीरंकर तुकी जहांगीरी, मोहम्मद अमीन को बादशाहनामा, मोहम्मद कादिरंकर आलमगीरनामा आदि पुस्तक मोगल जुगर शासन एवं संस्कृति उपरे आलोकपात करिथाय। वीडियोटी को जदि भल लगी ताहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दबो। जो माने प्रथम पार्ट को देखि नाहंती से थरे हमें यार ए विषय रो इंट्रोडक्शन आउ प्रत्नतात्विक उपादान विषय रे भल रे आलोचना मु करते छी। आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु दे देजी यार लिंक दे देजी, तुम जाके याको आगे देखि दबो। तापर पार्ट 2 पढिबो। वैदेशिक विवरणी। वैदेशिक विवरणी साहित्यिक उपादान रो एक अंश। जुगे जुगे बहु परिप्राजक भारत परिभ्रमण रे आसी एही देश संपर्क रे बहु उपादेय तथ्य सेमानकर विवरणी रे लिपिबद्ध करिसेंती। सेगुडी को प्राचीन भारत इतिहास रचना क्षेत्र रे बहु सहायता होइथिला। चंद्रगुप्त मौर्य समय रे ग्रीक परिप्राजक मेगास्थनीज भारत आसीथिले। से भारत संपर्क रे विवरणी तांकर पुस्तक इंडिका लिपिबद्ध करिथिले।
से तत्कालीन पाटलिपुत्रर शासन व्यवस्था, नगर वर्णना और से समय सामाजिक विभागीकरण आदि विषाद भाव वर्णना करिसेंती। गुप्त युगर अन्य एक चीन परिव्राजक आसीथिले, तांको नाम होजे फाहियान। तांको रचित पुस्तकर नाम होची फो क्यू की। फो क्यू की से गुप्त युगर विभिन्न विभाग उपरे आलोचना करिसेंती। से समय स्वच्छल राजनैतिक अवस्था, कोहल दंडनीति, पाटलिपुत्र नगरीर वर्णना आदि विषय मध्य से रचना करथिले। नालंदा, बुद्धगया, राजगृह एवं लुम्बिनी आदि स्थान रे से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म इत्यादि विषय रे तांको पुस्तक रे लिखिथिले। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी रे जैनिक अजଣା ग्रीक नाविक आरिथ्रियान सागर पेरिप्लस पुस्तक रे प्राचीन भारत ताले आरिथ्रियान सागर पेरिप्लस पुस्तक रे प्राचीन भारत रे विभिन्न पोताश्रय दरिया पारी वाणिज्य संपर्क रे सूचना देउथिले। सप्तम शताब्दी जैनिक सम्राट हर्षवर्धन शासन काल रे प्राचीन परिव्राजक ह्वेनसांग भारत परिभ्रमण करने को आसीथिले। 627 रु 643 ख्रीष्टाब्द मध्य भारत रे विभिन्न स्थान रे से परिभ्रमण करछन्ती। से आपणार जुगंतकारी पुस्तक सियुकी रे तत्कालीन भारत वर्षर विभिन्न व्यवस्था संपर्क रे लोकमाननकु अवलोकन करैछन्ती। से भ्रमण करिथिबा स्थान गुड़िक थानेश्वर, अयोध्या, प्रयाग, कंबोद, महाराष्ट्र, कर्ण सुवर्ण, कामरूप, श्रावस्ती, पंडुवर्धन आदि स्थान गुड़िक बौद्ध धर्मर स्थिति संपर्क रे आलोचना करथिले। 639 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा परिभ्रमण रे से आसीथिले। हर्षवर्धन कार्यदक्षता, कौनज धर्मसभा, प्रयाग धर्म मेला रे आदिर वर्णना तांको सियुकी रे मिलिथाय। से समय कठोर दंड प्रथा प्रचलित थिला। नालंदा, तक्षशिला, उज्जयिनी आदि भारतीय विश्वविद्यालय संपर्क रे से वर्णना करिसेंती। से समय सामाजिक, अर्थनैतिक, शिक्षा तथा संस्कृतिर वर्णना तांको सियुकी रु ही मिलिथाय। ह्वेनसांग परे भारत भ्रमण रे आस्थिले। तत्कालीन भारत वर्षर बौद्धिक धर्मर स्थिति संपर्क रे से विषाद भाव वर्णना करि जाइछन्ति। क्रमशः बौद्ध धर्म जे विलय आड़कू गति करुथुला एहा से उल्लेख करिछन्ति। एहा व्यतीत से तत्कालीन भारतर सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्थार सम्यक झलक मध्य तांको वर्णना रे प्रतिफलित होउछि। मध्ययुग भारत इतिहास बहु वैदेशिक विवरणी द्वारा रिधिमंत। सेगुड़िक मध्यरु इब्न बतूतांकर किताबुल रेहला अन्यतम। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक शासन विवरणी प्रदान करछन्ति। अब्दुल राजाक, मार्को पोलो, निकोलो कुंटी, बारबोसा और डोमिंगोस पियास आदिंकर वैदेशिक विवरणी सुल्तानी जुगर संस्कृति और शासन संपर्क में वर्णना करता है। ठीक सही परि भाबे रिचार्ड हाकुलित, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी, एडवर्ड टेरी, ट्राभेर नियर, रॉबर्ट कैभटे आदि यूरोपीय वैदेशिक माने मोगल जुगर शासन, समाज, संस्कृति उपरे सेमानकर अन्यवद्य विवरणी छाड़ी जाइछन्ति। एही सबु वर्णना को आधार करी मोगल जुगर सभ्यता और संस्कृति तथा शासन समय जना पड़ी थाए। आमे तो देखिले साहित्यिक उपादान किए किए रही को गुड़िक साहित्य उपादान भाग साहित्यिक उपादान संपर्क किए किए रही
କୋଉ କୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ପଢିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କଣ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଥିଲା? ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଠିକ 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 ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ ନା, କିଛିଟା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ସାହିତ୍ୟର ଦାନ ଅକଳନୀୟ, ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ବହୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ କଳ୍ପନା ବିଳାସିତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଘଟିଥାଏ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। କଳ୍ପନା ବିଳାସିତାର କଣ ନା କମ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, କମ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ କଳ୍ପନାତିକ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦରବାରୀ କବି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କବିମାନେ ଯୋଉ କବିମାନେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢେଇ ଚଢେଇକି ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଯେପରି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ, ବିଲହଣଙ୍କର ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁମାରପାଳ। ତୃତୀୟତଃ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଗୁଡିକ ବହୁ ଅହେତୁକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଘଣ୍ଟାଘର। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର 7 ଗୋଟି ଜାତି ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଦାଚିତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଆରବ ପରିବ୍ରାଜକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ଇତିହାସର ସଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଉପାଦାନରୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ଉଚିତ। ଅଭିଲେଖଗାର ଉପାଦାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢିବା।